Good morning, children. This is class is for UKG students about general knowledge. Already we have finished introduction of ourselves. Have you learned well, children? Then we did parts of the body, uses of hand and uses of legs. So all that you remember, have you done your worksheets? Yes, parts of the body. Remember head, eyes, nose, ears, mouth, neck, chest, hands, fingers, legs, tummy. Do you remember? Good. Now you have to learn about sense organs. Now sense organs are things which help us to sense things, feel things. महसूस करने के लिए हमें ये चाहिए ऑर्गन्स. कितने ऑर्गन्स हैं? हाउ मेनी ऑर्गन्स डू वी हैव? वी हैव 5 ऑर्गन्स. आईज, देन द नोज, ears, tongue, then your feeling. It is the skin. Okay. So we have 5 sense organs. What are those? Let us do it again. We have 1, 2, 3, 4, 5 sense organs. What are they? Eyes, nose, ears, tongue and skin. Skin is there in our whole body, right? You can feel anywhere. Eyes you have good. You have 2 eyes to see. 1 nose to smell. 2 ears to hear. And a tongue to taste and skin to feel. So what do we say? We see with our eyes. Repeat after me. We see with our eyes. We smell with our nose. We hear with our ears. We taste with our tongue. We feel with the skin. Other way of saying is, my eyes help me to see. My nose help me to smell. My ears help me to hear. My tongue help me to taste. My skin help me to feel. So these are the things you have to remember. These things. These are the 5 sense organs. Now these sense organs, what are their uses? Because of eyes we watch TV, we can see the scenery, nature, that is trees, birds, flowers and everything. Then you can see your friend, your parents, your pets, things at your home. What is the use of the sense of the organ of our nose? That is the smelling organ, nose. You can smell good dishes. You can smell tasty kheers. You can smell a flower. And also you can smell dirty things. That is used being in the garbage. कूड़ा होता है ना, उसका smell dirty होती है ना, कैसे पता चलता है कूड़ा है वहाँ पर? Okay, सूंघने की एहसास होता है. Then you have 2 ears. Ears is for what? To hear. What do you hear? You hear to music, news, radio. You can hear the sound of the bell. You can talk to somebody because in the telephone somebody else talks to you. Your ear can hear what the person is speaking. Then if somebody is speaking in front of you, like I am speaking to you, you are able to hear me. Why? Because you have good ears. Okay? And then you have the 4th sense organ is tongue. Tongue is used for what? You can taste everything. Khatta, meeta, all those things. Kadwa. So that is the use of the tongue. And what all you love to eat and taste? You like to taste the sweets, chocolates, juice, ice cream, Chinatown ice cream, then cakes, pastries of different flavors. So all those flavors, how do you able to taste? Like this is a strawberry flavor, this is mango flavor, chocolate flavor. How? Because of your taste in your tongue. Not only by seeing, but when you taste. When you can close your eyes and taste a strawberry ice cream and tell that is strawberry. Why? Because you are able to taste it with your tongue. Now, skin. Skin is used for
feeling. In case your eyes are closed and you come across fire and your hand is touching me, or by chance you have touched the fire, won't you scream? Then ice cubes. If you close your eyes and hold a cube, you know that it's an ice cube. It's ठंडा ठंडा है ना. फिर बारिश. जब आप बारिश में खड़े हो और आंखें बंद तो आपको पता है बूंदें गिर रही है आपके ऊपर, है ना. That's the feeling of your skin. Then कोई सुई से आपको मार देंगे तो आपको लगेगी ना. That feeling is called the skin. That is the feel of the skin. Okay. So eyes help us to see. Nose help us to smell. Ears help us to hear. Tongue help us to taste. Skin help us to feel. So these are the things which you have to remember and you should know. If I show you a picture, that picture, which sense organ is used to feel or sense that particular picture you have to do. Okay. So your activities also will be regarding those, wherein you will be telling all about, you will talk about 5 senses and what it is used for. Okay. And remember that you will be able to say that eyes help us to see, my nose help me to smell, my ears help me to hear, my tongue help me to taste, my skin help me to feel. So this way also you should be able to do. Okay. Good. Now for today's topic, that is sense organs. So there is another one interesting activity which you will be getting. It's the stages of life. That is when आप जब बच्चे थे, आपका वो वैसा वाला फ़ोटो आपको चिपकाना है. ठीक है. जगह इस वर्कशीट में मैंने रखा है जगह जिसमें आपको फ़ोटो चिपकाना है. ठीक है. दूसरा एक है कि अभी प्रेजेंट फ़ोटो, जो आपका अभी का फ़ोटो जो आपने एडमिशन के लिए डाला था ना, वो फ़ोटो लगा सकते हैं. दूसरा आपके घर में कोई है जो 4th क्लास 5th क्लास में पढ़ रहे हो, जैसे भाई बहन या कज़न्स हो या फ्रेंड्स हो, उनको लगा सकते हैं. फिर एक और फ़ोटो होगा जो 10th 11th 12th 9th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, उनका फ़ोटोज़. रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या कोई कटिंग भी हो न्यूज़पेपर से, वो भी लगा सकते हैं. फिर उसके बाद आपका मम्मी डैडी का एज का फ़ोटो. ठीक है. जैसे आप मम्मी का डाल सकते हैं, डैडी का, या चाचा चाचू जो बड़े हैं. ठीक है. मम्मी पापा के जैसे. उसके बाद एक और फ़ोटो का जगह होगा जहाँ पर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के फ़ोटो, कोई भी एक दादा दादी के फ़ोटो. आपके पास फ़ोटो नहीं है तो न्यूज़पेपर में मिलती है आपको ऐसे अलग फ़ोटो, तो रख लेना. तो आपको पता चलेगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. बच्चा, फिर थोड़ा बड़े होने के बाद बेबी, चाइल्डहुड, टीनेज, एडोलेसेंट, फिर वर्किंग, फिर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी. तो ये सारे स्टेजेस हैं जो वो एक्टिविटी करोगे. उसके बाद चित्र के साथ आपको मैं फिर से समझाऊँगी. ठीक है. पहले वो एक्टिविटी सिर्फ चिपकाने का काम है, वो चिपकाइए, तब आपको भी नज़र आएगा और आपको एक आइडिया आ जाएगा. फिर जब आप एक्टिविटी देखोगे आपको समझ आएगा, वो भी मैं दिखाऊँगी. ठीक है. Children, this video is about stages of life. पहला वाला चित्र देखो. जब आप पैदा हुआ था तब आप बेबी थे ना, बेबी, चलना फिरना नहीं आता. फिर आप क्रॉल करने शुरू हो गए. फिर आपने देखा आप थोड़ा बड़े हो गए हो, स्कूल जाने, किंडरगार्टन जाने लगे. फिर प्राइमरी क्लास में गए. जब और थोड़े और बड़े हो जाओगे आप कॉलेज जाओगे. कॉलेज के बाद आप ऑफिस जाएंगे, काम पे जाएंगे. फिर आप दादू बन जाएंगे. यही है स्टेजेस ऑफ लाइफ. बेबी, crawling baby, toddler, school student, फिर आप कॉलेज,
फिर पापा की तरह ऑफिस जाना, फिर दादू की तरह दादा बनना। ये है स्टेजेस ऑफ लाइफ। देखा आपने? तो आपको ऐसे ही चित्र, आपको एक वर्कशीट दिया है जिसको आपको कट एंड पेस्ट करनी है। आप चाहे तो आप दूसरे पेज में अपना फ़ोटोज़, जैसे मैंने वीडियो में बोला था जब जीके ले रही थी, वैसे ही करना है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, हर स्टेजेस को आप अपने फ़ोटो से, अपने भाई बहन के फ़ोटोज़ के साथ या मम्मी पापा के फ़ोटोज़ के साथ आप कंप्लीट करिए इस वाली एक्टिविटी को। समझ गए? Now we will be taking this topic about food. Food. Why do we eat food? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? हमें थक कर खाने के लिए, ताकि हम सारे काम एक दिन में जो करना है वो कर पाए। तो एनर्जी के लिए हम खाते हैं, है ना? तो खाने की चीज़ें भी, कुछ चीज़ें हेल्दी होती है, अच्छे खाने की चीज़ें होती है, और गंदे जो हमारे लिए अच्छी नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो हम उसके बारे में सीखेंगे। उनको क्या बोलते हैं? हेल्दी फूड। अच्छे फूड को क्या बोलते हैं? हेल्दी फूड। क्या बोलते हैं? हेल्दी फूड। और अनहेल्दी फूड क्या है? जो हमें नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा खाओगे तो पेट में दर्द, प्रॉब्लम्स होती है, बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं हेल्दी फूड। हेल्दी फूड क्या क्या होती है बताइए, आप ही बताइए। यस, फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा है। सारे फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है, सीजनल फ्रूट्स खाओ जो उस सीज़न के, जैसे समर में आम मिलती है तो आम खाओ, पर आम के साथ आप थोड़ी दूध पीना तो गर्मी ना लगे। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं हर सीज़न में, तो वो सीज़न के फ्रूट्स आपको खाना रोज़ सुबह या कभी भी एक दिन में अच्छे से फ्रूट्स खाना। फिर क्या है? वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स कच्चे भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। कच्चे भी पसंद है कि कच्चे वाले, जैसे कैरेट, कुकुम्बर, ये सब आप खा सकते हैं। और वेजिटेबल्स जो कुक करके आप सब्जी बना के रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं। फिर पल्सेस, दाल, बाकी राजमा, वो सारे पल्सेस दाल। फिर मिल्क प्रोडक्ट्स, रोज़ दूध पीना चाहिए। दूध हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी एक हेल्दी फूड है जो आपको रोज़, आप बचपन से दूध पी रहे हैं, आपको पीना चाहिए। दूध नहीं पीना अच्छा लगता है तो दही पीजिए, पनीर खाइए, ये सारी चीज़ें खाइए। ठीक, तो आपके दांत और हड्डियाँ अच्छे से स्ट्रॉन्ग होंगी। फिर आपके मीट प्रोडक्ट्स, चिकन, एग, अंडे, फिर मटन, ये सब आप खा सकते हैं। मीट की आइटम्स खा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्दी फूड है। आप ये हेल्दी फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा है। खाने से हमारी सेहत बढ़ेगी, हेल्दी हो जाएंगे। ये सब खाने से हमें अच्छी एनर्जी मिलती है और अच्छी ज्ञान भी, ताकि हम पढ़ सकें अच्छे से। अनहेल्दी फूड्स क्या है आपको भी पता है, क्योंकि आप नॉर्मली उसी के लिए रोते हो, लड़ते हो उनके साथ बनाने के लिए। जैसे मैगी हो गया, ठीक है, चॉकलेट्स, रोज चॉकलेट्स और चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, फास्ट फूड, जो भी आपके फास्ट फूड है, चिप्स, ये सारी चीज़ें आपको खानी है। ज़्यादा खाओगे तो पेट में दर्द आएगी, बीमार पड़ जाओगे। पता नहीं किस तेल में बना रहे बाहर, है ना? तो आपके घर की चीज़ें जो आपकी मम्मी बनाती हैं या दादी बनाती हैं, घर में जो सामान है, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के साथ आप जो बना रहे हो, उस दिन का आप हेल्दी रहोगे। आप ये सब रोज़ खाओगे और इसके लिए रोओगे, और क्या फ़ायदा? आपकी हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी। तो ये सारे अनहेल्दी फूड आपको याद रखनी है, ये ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जब मन लगे कभी एक बार, महीने में एक बार खाओ, बाकी आपको रोज़ ये खाना चाहिए हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाने से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो आपको सारा काम अच्छे से, बीमारी नहीं आएगी आपके पास, है ना? इसका एक थॉट भी है, एन एपल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना? वैसे आपको डेट लिखना है
जब भी आप काम करोगे आपका डेट रखना है। दूसरी बात है कि आपको मैंने एक थॉट सिखाया था। थॉट क्या है? टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इसका मतलब क्या है? समय और लहरें किसी के लिए रुकती नहीं, किसी के लिए रुकती नहीं। तो आपको क्या करना है? आप समय पे आपका काम करना चाहिए ताकि आपके काम सारे पूरे हो जाएं। तो जो भी वर्कशीट्स आपको मिलेगी वो आप कंप्लीट करके रखना। ओके चिल्ड्रन, आपको समझ आ गई? आपको इसके बारे में क्या करना है? आपको एक्टिविटी ऐसे दूंगी जिससे आपको हेल्दी फूड एक तरफ चिपकाना होगा, पेपर से, न्यूज़पेपर, मैगजीन से आप निकाल के काट के आप चिपका सकते हो, और अनहेल्दी फूड एक तरफ, पेपर को ऐसे फोल्ड करके एक तरफ हेल्दी एक तरफ अनहेल्दी फूड्स आपको चिपकाना है। 5 चित्र आपको पेस्ट करना है। तो आपकी उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग देनी है। और जब आपको आप स्कूल आओगे और मेरे साथ बैठोगे तब आपसे पूछूंगी मैं कि ये क्या है और क्यों हेल्दी है, क्यों अनहेल्दी है। ठीक है, गुड।